Hello everyone, welcome to the class and today we are going to cover about the topic and the name of the topic is polynomial and the exercise second B we are going to cover in this video. ठीक है, so one by one questions, all the questions we will cover. Okay, so now let's get started. Our first topic is the value of the polynomial. ठीक है, how to find the value of polynomial. ठीक है, in a polynomial if the value is given, so how we will find it. ठीक है, for that value if the polynomial px is given, ठीक है, so at that what we will do, if it is telling कि x is equal to a, so what we will do, we will simply put px in it, we will put simply on the place of x we will put a. ठीक है, so simply it is denoted by, it is डिनोट हम कहेंगे, ये जो डिनोट होगा वो होगा हमारा कैसे, पी ए से. कैसे होगा, पी ए से होगा. इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे करेंगे. कि अगर कहीं पे वैल्यू दिया हुआ है पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस, अगर हमारे पास है और 5x है और प्लस 6 है और यहाँ पे बोला है कि आप फाइंड करिए, फाइंड करने के लिए P2 is given. What is given? P2 is given. So in that case what we will do? In that case हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा polynomial 2. क्या हो जाएगा? It will become a polynomial 2. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 into 2 पे स्क्वायर प्लस 5 into 2. We will simply put the values on the place of x. ठीक है, प्लस 6. Now what will happen? 3 into what will become, 2 square will become 4. 5 into 2 it will become 10. Plus 6 it will become 12. Plus 10 plus 6 it will become 22 plus 6 and it will become 28. So this is how we will find the value of the polynomial that is being given here. So this is how the values are being calculated in a polynomial. ठीक है, if we move on to the next topic, in the next topic it is being given how to find the zero of the polynomial. So to find the zero of polynomial, what we will do, there are something. ठीक है, अगर इसी इक्वेशन में अगर हमें बताता कि whether it is a zero of polynomial or not, तो हमारी ये वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर यहाँ 28 की जगह पे अगर जीरो आता, क्या आता, जीरो आता, तो ये होता कि यस पॉलिनोमियल 2 इज जीरो ऑफ, ठीक है, पॉलिनोमियल. लेकिन जैसे कि जीरो नहीं आया है, 28 आया है, तो हम क्या करेंगे कि इट इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में सिंपली है इफ द आंसर विल कम जीरो दैट विल बिकम द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड इफ इट विल नॉट सेटिस्फाई दैट विल नॉट बिकम द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. So these two concepts we have to keep in mind, and keeping these concepts we will solve the exercises that are being given. ठीक है, so without wasting time let's get to the questions of the. It is given 5 minus 4 x plus 2x square. ठीक है, and हमें क्या find करना है, we have to find first question we have to p polynomial 0 and second we have to find the polynomial by putting the value 3 and the third question we have the p minus 2. So for this question बेटा क्या करना है, firstly we will solve first one हमें क्या रखनी है, p 0 है, polynomial क्या है, 0 है, तो x के प्लेस में हम 0 रखेंगे. क्या रखेंगे, 0 रखेंगे. तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5 minus 4x plus 2x स्क्वायर. अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 0 रखेंगे, 5 minus 4 into 0 plus 2 into 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर ये रखेंगे. इसके बाद क्या होगा, 5 into 4 into 0 0 ही होगा, प्लस 2 into 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ये होगा 5 minus 0 प्लस ये हो जाएगा 0. तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. ठीक है, तो अगर 5 आ रहा है, ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग लिख देंगे. दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि पॉलिनोमियल 3 हमें फाइंड करना है. ऐसे में हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन करेंगे, 5 minus 4x plus 2x स्क्वायर. अब सिमिलरली क्या करेंगे, 5 minus 4 की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 plus 2 into
3 का स्क्वायर क्या होगा 5 माइनस 4 3 12 प्लस 2 इंटू 3 3 9 हो जाएगा 5 माइनस 12 प्लस 9 2 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, गलत नहीं करना है बेटा। क्या करना है, 12 में से 5 गया तो हमारे पास आ गया कितना 7 आ गया। अब सिंबल होता है बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले नंबर है 12 के पास क्या सिंबल है माइनस, यहाँ होगा प्लस और ये हो जाएगा 18। सिमिलरली माइनस करेंगे, आप क्या करेंगे 18 में से हमारे पास 7 गया, माइनस प्लस होता है माइनस, तो हमारे पास आ गया 11 और सिंबल होती है बड़े वाले नंबर के पास, बड़ा वाला नंबर क्या है 18, तो हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, अब तीसरा केस भी हमारे पास दिया हुआ है। तीसरा केस दिया हुआ है कि p वैल्यू हमें रखनी है -2, क्या रखनी है -2, तो सेम इक्वेशन हम उतारेंगे। ठीक है, कि पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x पे स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे 5 माइनस 4 इंटू -2, 4 इंटू क्योंकि -2 है, प्लस 2 इंटू कर देंगे -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे -8 प्लस अब ये 2 2 जा हो जाएगा 4, तो 4 2 जा हो गया हमारे पास 8। ठीक है, ये हो गया 5 प्लस 8 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8, 8 8 16 और 16 और 5 हो जाएगा हमारे पास 21। सो ये हमारे पास एक आंसर आ रहा है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है 5 11 एंड 21, ये हमारी वैल्यू है 5 11 एंड 21। These are the values that we have to put। क्या किया है, सिंपली ये वैल्यू हमने इक्वेशन में पॉलिनोमियल में क्या कर दिया है, रख दिया है और उससे हमने वैल्यू निकाल लिया है। इसी तरह यही चीज बता रहा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में, यही चीज बता रहा था पहले वाले हेडिंग में कि हमें कैसे वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आप इसी बेसिस पे है, तो यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ, इससे आप खुद से ही ट्राई करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम, ये भी इसी तरह ही है लेकिन थोड़ा सा आप इसमें व्हाट डू यू कंक्लूड है, कंक्लूड क्या है। ठीक है, तो कंक्लूड में हम क्या कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ जीरो, वेदर इट इज अ नॉट जीरो। अब जीरो एंड नॉट जीरो के लिए क्या करेंगे, अगर जीरो आया है तो जीरो है, जीरो नहीं आया है तो जीरो नहीं है, इट इज अ नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसी तरह ही सिमिलरली हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है px, ठीक है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस हमारे पास है 2x। वैल्यूज कौन कौन से रखने हैं एक बार हम देखेंगे। हमारे पास फाइंड करने के लिए बोला है पॉलिनोमियल जीरो, क्या बोला है जीरो फाइंड करने के लिए बोला है, p1 पॉलिनोमियल 1 फाइंड करने के लिए बोला है और पॉलिनोमियल 2 फाइंड करने के लिए बोला है, और लास्ट में बोला है व्हाट वी कंक्लूड, हम क्या यहाँ से कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि कंक्लूड दे दिया है तो अब क्या करेंगे। देखो समझाने या घबराने की जरूरत नहीं है, यू नॉट हैव टू बी पैनिक। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। पहला है, पहले वाले क्वेश्चन आप ले लो, p जीरो है तो पहले तो आप पॉलिनोमियल उतारो, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो उतारो, फिर जीरो का क्यूब माइनस 3 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, प्लस वो भी हो जाएगा जीरो। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपका आ गया जीरो। ठीक है, क्योंकि एक जीरो प्रोडक्ट, जीरो हमारा एक लॉ होता है कि कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर खुद ही जीरो हो जाएगा। इट इज ए रूल ऑफ ए जीरो, जिसे हम जीरो प्रोडक्ट ला करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, देयर इज ए पॉलिनोमियल 1 इज गिवन, पॉलिनोमियल 1 इज गिवन, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है एक्स क्यूब एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x लिख दिया, क्या लिख दिया 2x लिख दिया। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अब हम 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये क्वेश्चन हमने कर दिया। 1 का क्यूब करो 1 ही आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और प्लस 2 आएगा, ये हो गया बेटा -2 और यहाँ पे है +2। आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ गया 0। तो पहले वाले का भी 0 आ गया, दूसरे वाले का भी 0 आ गया। तीसरा वाला हम देखते हैं क्या हो सकता है हमारे पास। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो हमें पुट करना है सेम चीज, px इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये क्वेश्चन है हमारे पास,
इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 रख लिया, इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 पे हो जाएगा क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8 माइनस ये हो गया हमारे पास 12 प्लस हो गया 4, ये आएगा -4, ये है +4, हो गया 0। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी, तीनों हमारे पास क्या हो गया, तीनों हमारे पास हो गया 0। तो अगर तीनों हमारे पास 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि P पॉलिनोमियल 0, पॉलिनोमियल 1 एंड P2 RD, हम लिख देंगे RD 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों 0 ऑफ पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि तीनों की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें बोल रहा है इफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, और -9 ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें देखना है P0, P3, P-3 एंड P-1। तो ये वैल्यू हम चार बनेंगे हमारे 0, 3, -3 एंड 1। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द 0 इज ए 0 ऑफ px। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखो अगर इन चारों को रखने के बाद 0 आता है तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर 0 नहीं आता है तो हम कंक्लूड करेंगे कि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, एज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो गए, 1 to 5 हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ हम बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, कि वेरीफाई करेंगे हम कि वेदर दे आर दी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको वेरीफाई कैसे हो पाएगा। अगर उसका आंसर 0 आ रहा है तभी तो वेरीफाई हो पाएगा। अगर उसका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम पहला वाला एक इजी क्वेश्चन उठाते हैं, 6 का पहला उठाते हैं। ठीक है, 6 का पहला दिया हुआ है कि 4 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। वेरीफाई करना है कि 4 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे करेंगे, दिया हुआ है px इज इक्वल टू x माइनस 4, ये दिया हुआ है। अब हमें वेरीफाई करनी है, क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो अब p पे हम रखेंगे 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गया। अब सर 0 आ गया मतलब इट इज ए 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। अगर 0 आ गया तो वो तो पॉलिनोमियल है। इसी तरह सेकंड पार्ट, इसी तरह थर्ड वाला मैं बता दे रहा हूँ। थर्ड वाला कैसे करोगे, थर्ड वाला आपके पास दिया हुआ है, चेक करना है कि 2/5 कैसा करना है, 2/5 वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, चेक करेंगे 2 माइनस 5x। क्या चेक करेंगे, 2 माइनस 5x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 2/5, 5 विल कैंसिल आउट एंड 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। इट इज आल्सो ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, -1/2। ये भी सिमिलर है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास gy इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बोल रहा है 2y प्लस 1। क्या है बेटा, 2y प्लस 1 है। इसमें क्या करेंगे, g लिखेंगे -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 प्लस 1। क्या होगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल, -1 प्लस 1 ये भी आ जाएगा 0। तो इट इज आल्सो ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने वेरीफाई कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। हर क्वेश्चन में आप क्या लिख दोगे, हैंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, नाउ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 भी 6 ही की तरह है। मैं एक क्वेश्चन में आपको लास्ट वाला बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या था, यहाँ पे अभी हमें एक ही वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना था। अब यहाँ पे दोनों केस में हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन 7 का लास्ट वाला बता दे रहा हूँ। 7 के लास्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड में बोल रहा है 0 and 3 आर दी 0। बोल रहा है 0 and 3 जो है ये ऑलरेडी क्या है, ये आर दी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आर दी हमारे पास क्या बोल रहा है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। पहले से ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हमें बता दिए गए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आर एक्स, क्या लिखेंगे बेटा, आर
एक्स पॉलिनोमियल, इक्वेशन दे दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x हमारे पास दिया हुआ, तो सबसे पहले हम पहला वेरीफाई करेंगे कि हमारा ये है। तो हमने लिख दिया पॉलिनोमियल 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो आंसर तो आएगा 0 ही। तो पहला वाला प्रूव हो गया, ठीक है। तो लिख दो HP, ठीक है, हैंस प्रूव, मतलब आप मत लिखना, आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, चलो मैं भी वही लिखता हूँ भाई, मैं भी पूरा फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी तो प्रूव नहीं हुआ, दूसरे वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला भी वेरीफाई करना है क्या। दूसरा वाला क्या रखना है, दूसरा वाला 3 रखना, क्या रखना है 3 रखना। तो 3 हम कैसे रखेंगे, 3 हम रखेंगे कि R3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। अब हो गया, ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, और यहाँ हो जाएगा 9, तो ये भी हो गया 0। तो अब आप लिख सकते हो कि ये क्या हो गया, हैंस हो गया सर, हैंस हो गया, और हैंस के साथ साथ हो गया प्रूव। तो हैंस प्रूव हमने कर लिया। इसी तरह 7th के फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी होगा, और 7th का सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको वेरीफाई करनी है क्वेश्चंस को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमें जीरोस को फाइंड करना है, क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है। जैसे एक वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला वाला मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वन, इट इज गिवन कि px इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है, px इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम ये लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 एंड दैट विल बिकम द आंसर। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। इसी तरह क्या करेंगे आप सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो पांचवा और छठा, 5, 6 और 7 ये तीनों मैं बता देता हूँ, और 9th वाला मैं बता देता हूँ। बस यही आपको वो है, हमारे पास दिया हुआ है gx इज इक्वल टू 5 माइनस 4x, क्या दिया हुआ है 5 माइनस 4x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 हो गया, क्या हो गया 0। अब माइनस 4x को यही रहने देंगे, और हमारे पास क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले आओ, या फिर एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 5 को यही रहने दो, और 4x हमारा क्या हो जाएगा, 4x हमारा इधर चला जाएगा। फिर सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। दूसरा, अब आप आ जाओ सीधे क्वेश्चन नंबर 6 वाले पे। 6 वाला भी इसी तरह है, ठीक है। 6 वाला क्या है, 6 वाला हमारे पास है, दिया हुआ है 6 वाला क्वेश्चन कि h इज इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है 6x माइनस 2, तो हो जाएगा 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/6, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, 1 और 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बेसिक है, आप क्लास 6, 7th और 8th में चीजें पढ़े होंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/3। अब सर, अब क्वेश्चन हो रहा है बहुत सारे बच्चों को जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर px इज इक्वल टू ax दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये बहुत इजी है, इसको करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे px इज इक्वल टू, दिया हुआ है ax दिया हुआ है, तो सिंपली क्या रखोगे, ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू हमारे पास 0 की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमारे पास आ जाएगी 0 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि भैया x इज इक्वल टू 0/a, क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 0/a लिख देंगे। और 0/a लिखने के बाद क्या होती है, ये जो वैल्यू है ये होती है हमारी नॉट डिविजिबल। क्या होती है बेटा, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी नॉट डिविजिबल, ये हमारी वैल्यू डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। इसी तरह अगला वाला भी क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला वाला 8th वाला क्वेश्चन है। 8th वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि gx इज इक्वल टू 4x, क्या दिया हुआ है, 4x दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/4, क्या हो जाएगा 0/4, इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल, तो सिंपली हम इसका वैल्यू 0 कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले और ये वाले की कैसे हमें करने हैं, ठीक है। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ 0, 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल f(x2x2 - 5x
स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? ए और बी की वैल्यू निकालनी है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाला, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ है, क्योंकि ये सबसे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम पॉलिनोमियल निकालेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 2x3, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है, प्लस है ax प्लस b दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बार 2 रखना है, एक बार 0 रखना है। ठीक है, तो पहले हम 2 रख के देख लेते हैं। तो हम 2 रख के देखेंगे, when 2 इज इक्वल टू 2 into 2 का क्यूब माइनस 5 into 2 का स्क्वायर प्लस a into 2 प्लस b, इतनी वैल्यू हमने रख दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 into ये हो गया 8 माइनस 5 into ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 2a प्लस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये हो गया 16 माइनस 5 4 20 प्लस 2a प्लस हो जाएगा b। ठीक है, क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये हो गया माइनस 4 प्लस 2a प्लस b, या फिर इसको ऐसे लिख लो 2a प्लस b माइनस 4। ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। ठीक है, और जब ये वाली वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हम क्या रखेंगे, जिसमें हम 0 रखेंगे। तो 0 रखने के लिए क्या करो, पॉलिनोमियल यहाँ पे 0 रख लो, इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन हमारे पास है 2x³ माइनस 5x स्क्वायर ax प्लस b दिया हुआ है। अब एक बार 0 रखना है, तो 2 इंटू एक्स के यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस हो जाएगा हमारे पास b। ये वाली वैल्यू रखेंगे। अब ये वाली वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, देखो बेटा ये ऑलरेडी 0 हो जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है, लोअर क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस a इंटू 0 0 हो गया प्लस b। तो b की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिली, b की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है, क्या मिल गई है, b की वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ पे 0। क्या मिल गई है, b की वैल्यू यू हैव ए 0। तो जो आपके पास 0 है, तो यही 0 का वैल्यू, ये आपका इक्वेशन पहला हो गया और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यही 0 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे या इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे, तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू निकल जाएगी। किसकी वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट पे हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है 2a प्लस b माइनस 4, क्या लिखा हुआ है 2a, ठीक है, प्लस b माइनस 4। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2a लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस 0 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 4, 2a माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2a इज इक्वल टू, ठीक है, 2a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4/2। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 0। a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 0। तो 9th वाला क्वेश्चन ऐसे करना था, आप ऐसे a और b की वैल्यू क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड कर सकते हो। और इसी के साथ वी आर फिनिशिंग अप द एक्सरसाइज 2b। We are finishing up the exercise 2b. Now it's your work to solve the MCQ, and tomorrow we will meet in the exercise 2c. Exercise 2c. ठीक है? Till then you have to solve this exercise 2b.